Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. In today's class, we are going to have a full revision on our unit number 2nd, which is research aptitude. Now, this is a special offer which is going on till 1st of January 2026. You can use the coupon code MERRY35 to get an additional discount. And paper 2 live batch 3.0, it is starting from 19th of January 2026. It is the complete foundation course of paper 1 and paper 2. And for more details or in case you have any query, you can contact on this number. Now today we are going to discuss the research basics, research design, in which we have sampling methods, hypothesis, variables, process of research, then research ethics क्या होता है, what is data collection, what are the analysis of data collection, research methods, research reports. Now, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क है. सो रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम लोग फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करते हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है हमें जिस चीज़ के ऊपर, हम और इन डेप्थ उसको जानने की कोशिश करते हैं. दिस इज रिसर्च. डिस्कवरी, इट इज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू और अनकवरिंग समथिंग हिडन. कोई चीज जो छुपी हुई है या फिर हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ डिस्कवरी. इन्वेंशन, इन्वेंशन बेसिकली होता है कि जब हम एक न्यू डिवाइस, प्रोसेस या कोई मेथड इन्वेंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, दैट इज एन इन्वेंशन. एंड इनोवेशन क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू आइडिया, मेथड और प्रोडक्ट इन अ प्रैक्टिकल वे. यानी जब हम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या फिर एग्जिस्टिंग आइडिया को या एग्जिस्टिंग मेथड को मॉडिफाई करते हैं ताकि आज के करंट ट्रेंड में हम उसको प्रैक्टिकल वे में यूज कर सकें, दैट इज इनोवेशन. सो रिसर्च क्या है? इट इज अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट. हमें और जानने की क्यूरोसिटी रहती है तो हम इसलिए रिसर्च करते हैं. रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना. इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी. क्यों? क्योंकि प्रोसेस होता है टू कंडक्ट अ रिसर्च. ऐसे नहीं कि आपका मन किया और आप कल सुबह उठ के रिसर्च करने लगे, ऐसा नहीं होता है. It is a methodological process of inquiry aimed to discover, interpret, and revise the facts, events, or behaviors. It involves the collection, analysis, and interpretation of data to answer a specific question or to solve a problem. So, research में R is rational way of thinking, E is expert and exhaustive treatment, S stands for search and solution, E stands for exactness, A is analysis, R is relationship of the facts, C is critical observation, careful planning, and constructive attitude. You should always have a positive attitude. Then H stands for honesty and hardworking. Talking about the characteristics of research, हमारी research कैसे होनी चाहिए? It should be objective, ethical, generalizable, reliable, valid, relevant, ethical, controllable, verifiable, reliable, accurate, and systematic. देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इट शुड बी अनबायस्ड. सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए हमारी रिसर्च में, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. एथिकल का मतलब क्या हुआ कि हमें माल प्रैक्टिसेस, वी डोंट हैव टू फॉलो माल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करने हैं. जनरलाइजेबल, जो हम सैंपल पे रिजल्ट्स निकालेंगे, दे शुड बी जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन. Then comes reliable. Reliable मतलब it should be consistent. Valid का मतलब क्या है? The results should be valid or they should be accurate. They should be relevant. Social relevance होना चाहिए. Ethical मैंने आपको बताया. Controllable का मतलब in a controlled setting, जो usually हमारे किस में होती है? Experimental research में होती है. It should be verifiable. Then it should be reliable, it should be accurate, and it should be systematic. मतलब sequence of steps to be followed. So these are the characteristics of research. अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो वो रेप्लिकेबल होना चाहिए कि यानी हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलने चाहिए हर बार.
प्रिसाइज होने चाहिए, लाइक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स दैट आर टू बी डिफाइंड सो दैट अदर्स कैन यूज दोज डेफिनेशंस टू, मतलब आपके पास जो डेफिनेशंस होनी चाहिए वो इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि वो उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं. Falsifiability. Theories that cannot be tested are not scientific theories and any such knowledge is not scientific knowledge. आप जिस थ्योरी को टेस्ट ही नहीं कर सकते तो आप उसको साइंटिफिक नॉलेज कैसे बोलेंगे? Then comes the parsimony कि when there are multiple explanation of a phenomena, so scientists always accept the simplest or the logical जो explanation उनको मिलेगा from a given set of explanations. So parsimony, वो हमेशा एक logical explanation को valid consider करते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे रिसर्च पैराडाइम्स. वी हैव ऑन्टोलॉजी. इट इज अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स व्हिच डील्स विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी. एपिस्टेमोलॉजी, branch of philosophy that investigates the origin, nature, methods and the limits of human knowledge. Then comes methodology, the procedure to gain the knowledge about the world. उसके बाद आता है हमारा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म. ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से. पॉजिटिविज्म के आपके कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए. सबसे पहला कि इट इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्विंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एलिमेंट्स. देन इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वांटिफाइबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स. जब जो चीज ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली वो क्वांटिफाइबल भी होगी. देन इट एम्फेसिस एम्पेरिसिज्म. एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, जो हमने ऊपर बोला कि which is gained through experience. Inquiry relies on observable and measurable facts. It is presumed that knowledge can be obtained through the senses. It is related to deductive approach. So positivism states that natural sciences are the only science. Positivism में हमारे natural sciences को importance दी गई है. फिर आता है post positivism. Post positivism क्या है? It focuses on interpretations that can be scientifically tested by using the different methods and techniques. These are based on some specific assumptions and supportive actions. In contrast to positivism, post positivism states that observation cannot be relied on perfectly because they are subject to error. यहाँ पे experiences की बात नहीं की गई, यहाँ पर scientific testing की बात की गई है. So post-positivists do not rely on sciences as pure solutions. Rather, they believe that each source of information has errors. Some important features are it is contrary to positivist approach. क्यों? क्योंकि हमारा जो positivist है वो natural sciences की बात करता है और post-positivism हमारे scientific testing की बात करते हैं. It presumes that scientists are biased and subjective. वहाँ पे objectivity थी. The laws and theories can be tested using scientific methods. Positivism क्या होता है हमारा? Deductive होता है, quantitative, scientific, objective, certainly, absolute reality, probability sampling, structured and control and deterministic. Post-positivism वहीं पर inductive होता है, qualitative होता है, then probability, subjectivity, humanistic, non-deterministic, critical reality, non-probability sampling, and it is unstructured and uncontrollable. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी. हमारे पास 4 तरह की वैलिडिटी है: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन एंड फेस वैलिडिटी. और ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं. मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, मैच देम में आए हैं दोनों. कंटेंट वैलिडिटी क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ मेजर रिप्रेजेंट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट बीइंग स्टडीड. जो आप स्टडी करना चाहते हैं आप वही स्टडी कर रहे हैं. कंस्ट्रक्ट, द डिग्री टू विच अ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट. आप जिसको मेजर करना चाहते हैं, जो आपने क्वेश्चन या जो आपने टूल यूज किया है वो टूल उसी को मेजर करेगा. वी हैव क्राइटेरियन वैलिडिटी, हाउ वेल वन मेजर प्रिडिक्ट्स एन आउटकम बेस्ड ऑन अदर एस्टैब्लिश्ड मेजर. दिस इज क्राइटेरिया, कि आपने क्राइटेरिया सेट किया है कि एक जो हमारा वेरिएबल है वो दूसरे आउटकम को कैसे मेजर करेगा. फेस वैलिडिटी, extent to which a test appears to measure what it is supposed to measure. Face, आप शक्ल देख के बता रहे हो कि हाँ ये जो टेस्ट है ये इसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है. दैट इज फेस वैलिडिटी. अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करती हूँ तो हमारे पास आता है सबसे पहला टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी.
टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या है? द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट ओवर द टाइम, यानी हम एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप पे लेकिन अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम जोन में एक ही टेस्ट को एक ही ग्रुप पे जब अप्लाई कर रहे हैं, सो टेस्ट रीटेस्ट, उसी टेस्ट को हमने दोबारा से अप्लाई किया, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. Then we have inter-rater reliability, the extent to which different raters give consistent estimates of the same phenomena. Inter-rater मतलब दो तीन raters के बीच में. Internal consistency, the consistency of results within a test. Within a test भी हम जैसे Cronbach alpha देखते हैं, तो वो क्या है? That is internal consistency. Parallel form, the consistency between two equivalent forms of a test to measure a same construct. हमने एक ही कंस्ट्रक्ट को दो अलग अलग टेस्ट के थ्रू मेजर किए, तो वो कितने रिलायबल आ रहे, कितने कंसिस्टेंट आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज पैरेलल फॉर्म्स. सो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी: फेस वैलिडिटी, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, स्टैटिस्टिकल, इकोलॉजिकल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फेस वैलिडिटी, ठीक है, फेस वैल्यू पे काम करता है. कंटेंट, द कॉल मेड बाय एक्सपर्ट्स दैट द मेजर इज टैपिंग व्हाट वी थिंक इट इज, जो हम सोच रहे हैं. Construct, which requires to create a highly specific operational definition. Construct, जो हम construct measure कर रहे हैं, क्या वो उसी को measure कर रहा है या नहीं कर रहा है. Statistical क्या है? जो हम statistical analysis choose कर रहे हैं. Ecological, the findings are generalizable to the real world. अगर हम एक लैब में कंट्रोल्ड सेटिंग्स में हमने कोई सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, क्या वो रियल वर्ल्ड सेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल वैलिडिटी. Then we have internal validity. Internal validity, the precautions have been taken to safeguard against the possibility. And external validity, the findings have been only generalized to the populations which are supported by the test. So these are the types of validity. फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च. अगर हम नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो हम नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास आता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर मिक्स्ड रिसर्च. अगर हम पर्पस की बात करते हैं कि हमारे रिसर्च का पर्पस क्या है, तो या तो वो बेसिक हो सकता है, फंडामेंटल, प्योर, या फिर अप्लाइड रिसर्च. अगर टाइम की बात करते हैं, हमने कितने टाइम में अपना डेटा कलेक्ट किया है, इट कैन बी इधर लॉन्गिट्यूडनल और इट कैन बी क्रॉस सेक्शनल. अगर हम सोर्स की बात करते हैं, इट कैन बी इधर कंसेप्चुअल और इट कैन बी एम्पेरिकल रिसर्च. बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड. बेसिकली इसका कीवर्ड क्या है? टू कलेक्ट नॉलेज. हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज एक्सप्लोरेशन. हम इन डेप्थ किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च की बात करते हैं. अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं थ्योरी को या फिर अपने फैक्ट्स को या फिर अपने कॉन्सेप्ट को, सो इट नीड्स टू बी एन एम्पेरिकल स्टडी एंड इट फाइंड्स प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट रिजल्ट्स. ठीक है, जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम एनकाउंटर करते हैं अपनी रियल लाइफ में, उनके जो सोल्यूशंस होते हैं, उनकी जो टेस्टिंग होती है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. एक्शन रिसर्च क्या होता है? इट इज अ लोकल लेवल प्रॉब्लम. इट इज लोकल लेवल प्रॉब्लम. सो एक्शन रिसर्च क्या है? हमारा एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है ऑफ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग. PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, दैट इज एक्शन रिसर्च. यानी अगर ये हमारा पूरा अप्लाइड रिसर्च है एक बड़े लेवल पे, तो जो एक्शन रिसर्च है, इट इज अ सबसेट ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड इट डील्स एट अ लोकल लेवल. क्वांटिटेटिव, स्टैटिस्टिकल डेटा की बात होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा, नेचुरल साइंसेस, एंड इट यूजेस मैथ्स, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स. क्वालिटेटिव की बात करते हैं, सो इट रिलाइज ऑन वर्बल नैरेटिव्स. इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक्सप्लोरेटरी होता है. इट जनरेट्स हाइपोथेसिस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. बेसिकली यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं आता हमारा, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारी प्रोपोजिशंस आती हैं, हम प्रोपोजिशंस जनरेट करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं. आप कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस वर्ड यूज नहीं करते हैं. देन रिसर्चर्स गिव मोर वेटेज टू व्यूअर्स पार्टिसिपेंट. क्वालिटी, ये हमारी क्वालिटी की बात कर रहे हैं और ये हमारे क्वांटिटी यानी डेटा की बात कर रहे हैं.
अगर डिफरेंस की बात करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा पर्पसिव होता है, कोई पर्पस होता है हमारा तभी हम क्वालिटेटिव डेटा चूज करते हैं। वर्बल डेटा होता है, हाइपोथेसिस, या फिर आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हाइपोथेसिस आर जनरेटेड एंड हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, बट बेटर टू राइट प्रोपोजिशंस आर जनरेटेड। हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं बट प्रोपोजिशंस आर अ बेटर वर्ड। Propositions are generated, word, picture and objects are analyzed. It is non-structured and post-positivist philosophy. क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो रैंडम सैंपल होता है, मेजरेबल डेटा होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज किया जाता है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड एंड इट इज पॉजिटिविज्म अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, it follows the same sample over time. At regular intervals, the changes are tracked. For example, आपने एक बच्चे के ऊपर स्टडी करनी है कि उसका दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वो जब 1 ईयर का था, आपने तब से उस बच्चे के ऊपर स्टार्ट किया और आपको देखना है जब तक वो 25 ईयर्स तक नहीं हो जाता, ठीक है। तो सैंपल आपका एक ही है लेकिन आपका टाइम पीरियड अलग अलग है। क्या पता आप 1-1 साल के बाद उसको चेक करें, क्या पता आप हर 6-6 महीने के बाद चेक करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, यानी रिपीटेड मेजर्स फ्रॉम द सेम सैंपल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल की, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, टाइम एक ही होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सैंपल्स एट सेम टाइम। तो अगर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही रिसर्च करनी है तो आप क्या करेंगे, एक छोटे बच्चे को भी ले आएंगे, एक बड़े बच्चे को भी ले आएंगे, ठीक है। एक छोटा बच्चा ले आए, छोटा बच्चा, एक बड़े बच्चे को ले आए, ठीक है, एक टीनेजर को ले आए, एक अडल्ट को ले आए। तो आप एक ही टाइम पे 4 अलग अलग ले आए बच्चों को, या 4 अलग अलग एज ग्रुप को ले आए, so as to have an idea on cognitive development. यहाँ पे क्या था, there was one sample at different time, पर वहां पे क्या था, different samples at same time. So this is the basic difference between longitudinal and cross sectional. ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल में टाइम एक ही है, एक ही टाइम पे आप अलग अलग सैंपल्स ले आए, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में सैंपल एक है लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च का डिफरेंस देखें तो डिस्क्रिप्टिव हमें व्हाट वाज या फिर व्हाट इज, यानी डिस्क्रिप्शन देता है प्रॉब्लम का। एनालिटिकल हमें बताता है क्यों ये हुआ या कैसे ये हुआ। इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एंड इट मेक्स अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, लाइक एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ राइजिंग कोरोना वायरस, एनालाइजिंग द रीजन बिहाइंड कोरोना वायरस। वो एनालाइज कर रहा है कि क्यों ये चीज हो रही है, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है। फंडामेंटल और अप्लाइड, फंडामेंटल it makes an addition to the existing knowledge and it finds out the solution. It is used to discover the new things. It is used in applying those solutions to the existing problems. It is extensive in nature and it is intensive in nature. Deductive research top down होती है, inductive bottom up होती है. So theory is tested with the help of information. यहाँ पे theories को हम formulate करते हैं. It begins with hypothesis and it begins with the research questions. Conceptual research क्या होता है, to develop the new concepts. Empirical क्या होता है, experience के ऊपर rely करता है. Conceptual, it is related to some abstract idea or theory. Empirical, it must formulate a working hypothesis. Empirical मतलब experience या फिर हम observation पे जो काम करते हैं. देन ये थ्योरेटिकल अप्रोच होती है और जो एम्पेरिकल होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है, इसीलिए यहाँ पे एक वर्किंग हाइपोथेसिस जनरेट किया जाता है। इनोवेटिव रिसर्च, सो इनोवेशन ऑफ न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और टेक्निक। इंक्रीमेंटल क्या है, इंप्रूवमेंट या फिर मॉडिफिकेशन और एग्जिस्टिंग। यहाँ पे जैसे रिसर्च फॉर कोरोना वैक्सीन और रिसर्च कंडक्टेड बाय कंपनी टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। इंक्रीमेंटल पे इट टॉक्स अबाउट मॉडिफिकेशन और यहाँ पे
इनोवेटिव रिसर्च में कुछ न्यू चीज इन्वेंट हो रही है, न्यू इन्वेंशन। फिर आता है रिसर्च प्रोसेस। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको स्टेप्स दे दिए जाते हैं ABC करके, और फिर आपको बोला जाता है कि आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। सो सबसे पहला आता है डिफाइन द प्रॉब्लम, then designing the research, design the data collection forms, specifying sample, collecting the data, analyzing the data and writing the research report। या फिर research problem identify किया, then you are formulating the hypothesis, then you are selecting the method to be used, then we have data collection, analysis and interpretation and reporting the result। अब हमें रिसर्च प्रोसेस पता क्यों होना चाहिए? So, knowing the basic steps in research process is not just about following a set of instructions, but understanding how research functions. So, it gives us clarity and focus. अगर हमें पता है कि हमें कौन से steps follow करने हैं, obviously we would be clear in our mind. Then organization, research process का एक clear framework है। जैसे मैंने आपको पीछे steps बताए कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद ही फॉर्मुलेशन होगा हाइपोथेसिस का। ये नहीं कि पहले आपने हाइपोथेसिस बनानी है देन यू आर आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, या फिर हाइपोथेसिस के बाद यू आर रिपोर्टिंग द रिजल्ट एंड देन यू आर कलेक्टिंग द डेटा। उल्टा सीधा नहीं होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिबिलिटी, अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोसेस इंश्योर किया है तो जो आपके फाइंडिंग होंगे वो क्रेडिबल होंगे। देन क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियसली जो क्वालिटी होगी वो भी थ्रू आउट द वर्क दिखेगी, चाहे आपका डेटा कलेक्शन है, चाहे एनालिसिस है, चाहे इंटरप्रिटेशन है, कुछ भी है, अगर आपने वो रिसर्च प्रोसेस फॉलो किया है तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक। यू हैव टू चूज अ क्लियर एंड मैनेजेबल टॉपिक दैट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट इन फील्ड। कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, अब जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है वो आपने उसको समझना भी तो है ना कि क्या ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, या फिर क्या फ्यूचर गैप्स हैं, या फिर क्या ऐसा गैप है जिसको आप आइडेंटिफाई करके आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। देन डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और क्वांटिटेटिव के केस में आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। दैट प्रोवाइड्स अ क्लियर फोकस ऑफ द स्टडी। चूजिंग द रिसर्च डिजाइन मेथोडोलॉजी, अब आप एक रिसर्च अप्रोच चूज कर रहे हैं कि आपको क्वालिटेटिव जाना है, क्वांटिटेटिव जाना है, या फिर मिक्स्ड जाना है। Collecting the data, then you are gathering the information which is relevant to your research question, then analyzing the data, you are interpreting and analyzing the data through statistical tools or thematic analysis। thematic analysis हम qualitative में यूज करते हैं, statistical हम quantitative में यूज करते हैं। तो आप जिस तरीके का रिसर्च अप्रोच रखेंगे आप उसी हिसाब से डेटा एनालिसिस के लिए आप टूल्स अप्लाई करेंगे। देन इंटरप्रेट एंड डिस्कस द फाइंडिंग्स, फिर आप क्या करते हैं, रिजल्ट्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और उनको कंपेयर करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में ये हुआ था पास्ट में, तो जो मैंने स्टडी की है उसमें ऐसा हुआ है। दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑन द फाइंडिंग्स। फिर आप क्या करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। यू समराइज द मेन फाइंडिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, एंड एट लास्ट यू रिपोर्ट योर रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। सो presenting the research findings through a research paper, report or presentation, detailing the methods, results and conclusions। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वी हैव NOIR, that is nominal, which talks about category. We have ordinal, which talks about category plus order. We have interval, which talks about category plus order plus zero value, and we have ratio, which talks about category plus order plus zero value, true zero value plus true zero value। तो अगर ये आपका नॉमिनल स्केल है तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा, ये आपका इंटरवल हो जाएगा, और ये आपका रेशियो स्केल हो जाएगा। सो नॉमिनल टॉक्स अबाउट लेबलिंग, ordinal labeling plus meaningful order,
Interval, labeling, order plus proportional intervals, and labeling, order, proportional intervals plus absolute zero. This is your ratio scale. देखिए नॉमिनल कैटेगरी की बात हुई थी, जेंडर, इट कैन बी इधर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता. बैंक अकाउंट नंबर नॉमिनल होता है. यू हैव सेविंग्स बैंक, यू हैव करेंट बैंकिंग अकाउंट, तो मतलब वो स्पेसिफिक है. अब 3 या 4 अकाउंट से ज्यादा आपके और अकाउंट्स नहीं हो सकते. इट कैन बी द नॉमिनल. देन वी हैव रोल नंबर्स, फोन नंबर्स एंड पैन नंबर. ये नॉमिनल है, ये कैटेगरी है. उसके बाद है ऑर्डिनल, रैंक, फीडबैक, रेटिंग ऑफ अ मूवी, रेटिंग ऑफ होटल्स, द क्लास ऑफ ट्रैवल. ठीक है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है. सो दीज आर ऑर्डर्स. इंटरवल की बात करते हैं. टेम्परेचर, कैलेंडर डेट्स, लैटिट्यूड, रेटिंग स्केल. यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर 0 डिग्री बोलती हूँ, सो इट मीन्स समथिंग. 0 डिग्री का मतलब कुछ है. 0 डिग्री इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है. इट मीन्स समथिंग. ठीक है. देन रेशियो, वेट, सैलरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ टाइम्स वन विजिट अ बैंक. मैं बोलती हूँ मेरी सैलरी 0 है. 0 का मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ. ठीक है, मैं बोलती हूँ ठीक है मेरी सैलरी 10,000 है. मेरी सैलरी लेट्स से, मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ मेरी सैलरी 0.5 है. भाई 0.5 क्या हो गया? ऐसा नहीं होता. नंबर ऑफ टाइम वन विजिट अ बैंक, मैं महीने में 5 बार जाती हूँ बैंक. मैं महीने में 3 बार जाती हूँ. मैं 0 टाइम्स विजिट करती हूँ बैंक. मैं सब कुछ ऑनलाइन कर लेती हूँ, मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है. क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं 2.5 टाइम्स जाती हूँ बैंक? नो. सो दिस इज एब्सोल्यूट. नॉमिनल, नंबर्स, नंबर्स आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल्स हैं. ऑर्डिनल, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑर्डर की बात करते हैं. इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी टेम्परेचर, एटीट्यूड, ओपिनियंस. एंड 0 पॉइंट इज फिक्स्ड लाइक लेंथ, वेट. इसकी मैं बोलती हूँ डॉट की लेंथ कितनी है, बोलोगे मैम 0 लेंथ है. डॉट इज जस्ट अ डॉट, इसकी कोई लेंथ नहीं है. हाँ, इस ये जो लाइन मैंने बनाई है इसकी कोई लेंथ हो सकती है, लेकिन एक डॉट की क्या लेंथ होगी? उसके बाद आते हैं हमारे स्केलिंग टेक्निक्स. स्केलिंग टेक्निक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, कंपैरेटिव स्केल्स एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स. कंपैरेटिव स्केल्स आगे होते हैं हमारे पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर एंड कांस्टेंट सम. नॉन कंपैरेटिव हमारे कॉन्टिन्यूअस और आइटमाइज्ड होते हैं, which are further divided into Likert, semantic and staple scale. अब देखो कंपैरेटिव स्केलिंग में क्या होता है, द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद द अदर. यहाँ पे हमारे 4 तरीके के होते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम एंड क्यू सॉर्ट स्केल. पेयर्ड कंपैरिजन में क्या है, जिससे मैंने आपको बोला कोक और पेप्सी को कंपेयर करो. फिर कोक, पहले आपने कोक और पेप्सी को किया, फिर आपने कोक और स्प्राइट को किया, फिर आपने कोक और लिम्का को किया. तो जितनी बार प्रेफरेंस है आपने, जैसे यहाँ पे कोक को स्प्राइट से या स्प्राइट को प्रेफरेंस दी है, यहाँ पे लिम्का को दी है, यानी 2 टाइम्स इट इज प्रेफर्ड. फिर उसके बाद पेप्सी, पेप्सी को आप स्प्राइट से करेंगे, पेप्सी को आप लिम्का से करेंगे, पेप्सी को आप कोक से करेंगे. फिर स्प्राइट को आप लिम्का से करेंगे, स्प्राइट को पेप्सी से, स्प्राइट को कोक से. तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग देते जाएंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स ये जो 4 कोक्स थी वो प्रेफर कितनी बार हुई है. दिस इज पेयर्ड कंपैरिजन, यानी हम पेयरिंग करके और फिर कंपेयर कर रहे हैं. रैंक ऑर्डर क्या हो गया कि देखो अब ये हमारे पास 4 ब्रांड्स है, कोक, पेप्सी, लिम्का और स्प्राइट. अब आपने उनको रैंक देना है. आपने पेप्सी को 1 दिया, लिम्का को 2, कोक को 3 और स्प्राइट को 4. तो आपने क्या कर दिया, ऑर्डरिंग कर दी. कांस्टेंट सम स्केल, अब जैसे ये एक डिटर्जेंट के लिए रिसर्च किया गया. ठीक है, कोई नया डिटर्जेंट निकाला और जो रिसर्चर ने क्या किया, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बोला कि आपके पास टोटल 100 पॉइंट्स हैं. अब आपने 100 पॉइंट्स को प्राइस, फ्रेगनेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग पाउडर और लेथर, इनमें ये जो 5 कैटेगरीज बनाई है आपने, ये 100 पॉइंट्स उसमें डिवाइड करने हैं. तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्राइस को 50 दे दिया, पैकेजिंग को 10 दे दिया, क्लीनिंग पाउडर को 30 दे दिया. तो जो एक कांस्टेंट सम दे दिया कि 100 पॉइंट्स ही हैं, आपने जितनी भी कैटेगरीज है उसी में उसको डिवाइड करने हैं. या फिर 50 पॉइंट्स आपको दिए और ये हमारे पास 5-6 कैटेगरीज हैं, आपने उसमें 50 पॉइंट्स को डिवाइड करना है, एलोकेट करना है. सो दिस इज कांस्टेंट सम स्केल. उसके बाद है क्यू सॉर्ट. क्यू सॉर्ट स्केल में क्या होता है,
कि एक बंदा है, ठीक है, एक ही बंदे को हमने बोला कि अपने जो आपको सबसे ज्यादा प्रेफर है, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये मैगजीन की एग्जाम्पल है, तो उन्होंने बोला कि आपको 10 मैगजीन्स, आपको एक क्या दिया, एक पिक्चर दिखाई है, ठीक है, जिसमें 90 मैगजीन्स के नाम है। आपने बोला कि 10 बताओ जो आप सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे, 10 मैगजीन्स ऐसी, 20 मैगजीन्स ऐसे बताओ जो मतलब आपको पसंद है, यू लाइक टू परचेज देम और टू रीड देम। देन उसके बाद न्यूट्रल में चली जाएंगी 30 मैगजीन्स, डिसलाइक में चली गई 20 मैगजीन्स, लीस्ट प्रेफर्ड 10। तो आपने क्या किया, एक ही बंदे से, रिस्पोंडेंट एक ही था, वन रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट एक ही है, यहाँ पे क्या थे, मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स, बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। काम दोनों का सेम ही है कि जो हमें एलोकेशन है वो हमें जो हमें नंबर होगा, कांस्टेंट सम होगा, हमें उसको एलोकेट करना है अलग अलग कैटेगरीज में। कैटेगरीज ये भी हैं, विच आर मोस्ट प्रेफर्ड, विच आर लाइक्ड, विच आर न्यूट्रल, डिसलाइक, लीस्ट प्रेफर्ड, बट यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो एक ही है। उसके बाद आता है हमारा नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। सो नॉन कंपैरेटिव स्केल्स में क्या आता है, रिस्पोंडेंट्स नीड ओनली टू इवेलुएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात होती है, वहां पे क्या था, हम कंपेयर कर रहे थे, कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहे हैं, ये नॉन कंपैरेटिव है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू, विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए, हाउ वुड यू रेट अ टीवी एड एज अ गाइड टू बाय, ठीक है, आपको जो टीवी की एड्स आती हैं टू बाय अ टीवी, आप उसको कितना रेट करेंगे, कि एड देख के आपका मन करता है उस टीवी को खरीदने का। तो इट कैन बी इधर फ्रॉम स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, और फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री, ठीक है, मतलब स्ट्रांगली अग्री यहाँ पे आपने 1 2 3 4 ऐसे शुरू कर दिया, या फिर आपका पहले स्ट्रांगली अग्री 1 है तो 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, या फिर स्ट्रांगली अग्री 10 से स्टार्ट हो रहा है, या स्ट्रांगली डिसएग्री 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अलग अलग टाइप है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस रेटिंग। अगर हम आइटमाइज्ड रेटिंग की बात करते हैं, सो दे हैव नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस एसोसिएटेड विद ईच कैटेगरी, हमने हर एक कैटेगरी के साथ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एसोसिएट किया होता है। जैसे लिकर्ट स्केल है, ठीक है, तो लिकर्ट स्केल में क्या है, अगर हम फूड प्रोडक्ट्स के लिए ओपिनियन ले रहे हैं, सो इफ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉल, फर्म्स टू शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को हमने छोटा 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 डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, और फिर उसके आगे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो लेट्स से वो बोलते हैं अग्री, ठीक है, इस वाले सेंटेंस के लिए वो बोलते हैं नीदर अग्री नॉट डिसएग्री, मतलब न्यूट्रल पे जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भी वो 3 लगाते हैं, इसके लिए लेट्स से 4 लगाते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिकर्ट स्केल। अगर सिमेंटिक डिफरेंशियल की बात करते हैं, सो मॉडर्न से ओल्ड फैशन तक आप क्या नंबरिंग करेंगे, या फिर आप किसको चूज करेंगे, लेट्स से मैंने इसको चूज कर दिया, ठीक है, गुड बैड, मतलब ये कैटेगरीज बता दिए सिमेंटिक, ठीक है, एक मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे, एक एक्सपेंसिव और एक इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स दोनों को हमने ले लिया, एक इंपॉर्टेंट ले लिया, एक नॉट सो इंपॉर्टेंट ले लिया, तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स को लेके हमने एक स्केल डेवलप कर दिया। उसके बाद आता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल में क्या है कि आपने क्या करना है, प्लस नंबर लगाने फॉर द वर्ड्स यू थिंक दैट डिस्क्राइब द पर्सनल बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग को लेकर आपने स्टेपल स्केल वो किया है, इन्वेंट किया है। तो अगर फ्रेंडली पर्सनल है और अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज है, तो आप या तो +1 +2 +3 +4 +5 आप पॉजिटिव में से लेंगे। अगर आपको ये गलत लगती है, ये चीज गलत है, तो आप नेगेटिव में से लेंगे, ठीक है। ऐसे कंपेटिटिव लोन रेट्स, अगर आपको लोन रेट्स अच्छे लग रहे हैं उस बैंक के, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में से जाएंगे, और अगर नहीं अच्छे लग रहे तो आप नेगेटिव में से चूज करेंगे। सो दिस इज स्टेपल स्केल। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। सो वेरिएबल क्या होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, वैल्यू इज चेंजिंग constantly, that is a variable. So anything that can vary, it is considered to be a variable. For instance, age, it is a variable because it can take different values for different people. ठीक है, छोटे बच्चे के लिए एज 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 14 भी हो सकती है। बड़े लोगों के लिए 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, और 100 भी हो सकती है। तो एज जो है वो चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, एज पीपल आर चेंजिंग। सो दिस इज अ वेरिएबल। अब हमारे पास बहुत सारे तरह के वेरिएबल्स होते हैं। वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग, डिपेंडेंट, कंफाउंडिंग, मीडिएटिंग, इंटरवीनिंग और कंट्रोल वेरिएबल्स।
सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू इन्फ्लुएंस द अदर वेरिएबल. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम क्या करते हैं, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो सके, उसमें हम चेंजेस दे सकें. दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैंने अभी आपको बताया हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं. सो उससे क्या होता है, जो वेरिएबल अफेक्ट होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, प्रमोशन अफेक्ट्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन. ठीक है, परफॉर्मेंस से मोटिवेशन अफेक्ट होता है. तो प्रमोशन क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर तो प्रमोशन अच्छा हो रहा है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल हो रहा है, तो जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन है वो भी तो अच्छा रहेगा, वो भी इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर प्रमोशन जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बायसनेस हो रही है, भेदभाव किया जा रहा है, अनफेयर प्रमोशन हो रही है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा. तो जो मोटिवेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रमोशन, है ना. मतलब प्रमोशन को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं. वी आर मैनिपुलेटिंग द प्रमोशन टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन मोटिवेशन. एम्प्लॉय का मोटिवेशन कितना चेंज हो रहा है एक प्रमोशन से. तो प्रमोशन क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मोटिवेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. ये भी आपको पता होना चाहिए अदर नेम्स फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन्ड, प्रेडिकेंट, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, आउटकम या कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेनेटरी, जो एक्सप्लेन कर रहा है. देन इट इज अ प्रेडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, कोवेरिएट और कंट्रोल वेरिएबल. फिर आता है हमारे पास इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल. So it is a variable whose existence is inferred but cannot be measured. It is caused by the independent variable and is itself a cause of the dependent variable. अब ये देखिए, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और बीच में हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल है. अब देखो, हायर एजुकेशन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हायर एजुकेशन से हमें बेटर इनकम मिलती है या फिर हाई इनकम मिलती है. बात सही है ना, कि अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, तो हमें इनकम भी ज्यादा मिलेगी. ठीक, लेकिन वो ज्यादा क्यों मिलेगी, जब हमारे पास जो काम है, जो ऑक्यूपेशन है वो बेटर होगा. सो बेटर ऑक्यूपेशन कब होगा, जब हमारे पास एजुकेशन अच्छी होगी, और जब बेटर ऑक्यूपेशन होगा तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी. सो इट इज कॉजली अफेक्टेड बाय एजुकेशन. जो हमारी ऑक्यूपेशन है वो एजुकेशन से अफेक्ट हो रही है, लेकिन वो इनकम को अफेक्ट कर रही है. खुद ये एजुकेशन, अगर मैं 12th पास हूं तो मेरी जो इनकम है वो उस हिसाब से होगी. लेट्स से मेरी इनकम 10,000 है. वही अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो लेट्स से मेरी इनकम 20,000 है. मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, ठीक है, तो मेरी इनकम लेट्स से 40,000 जा रही है. तो एजुकेशन के साथ इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन मैं काम भी तो देखो ना कैसे कर रही हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 12th पास थी तो शायद मैं क्लास 4th की नौकरी कर रही होती है अभी. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, शायद मैंने एग्जाम दिया है और मैं एक लेट्स से किसी बैंक में लगी हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में लगी हूँ, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी एचडीएफसी बैंक में लगी हूँ, किसी भी बैंक पे लगी हुई हूँ, एंट्री लेवल पे ही लगी हूँ. ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे, लेकिन जो इनकम है वो मेरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड कर रही है. तो जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है, इट इज कॉज्ड और इट इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इट अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल. और यही लाइन पीछे लिखी है कि इट इज कॉज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट इट इज द कॉज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. दीज आर द अनडिजायरेबल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन ए एक्सपेरिमेंटर. जैसे an educational psychologist has developed a new learning strategy and is interested in examining the effectiveness of that strategy. एक एजुकेशन की साइकोलॉजिस्ट है,
उन्होंने एक लर्निंग की स्ट्रैटेजी डेवलप की है और वो अब उसकी इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करना चाहते हैं. सो एक्सपेरिमेंटर क्या करेंगे, दे विल रैंडमली असाइन द स्टूडेंट्स इनटू टू ग्रुप्स. लेट्स से हमारे पास 50 स्टूडेंट थे, उन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए और उनको बोला कि आप दो ग्रुप्स बना दिए 25 ईच. और उनको क्या बोला कि आप 30 मिनट्स तक, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स आप क्या करेंगे, एक बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे. तो लेट्स से ग्रुप 1 को तो उन्होंने नॉर्मल जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही बताया, ठीक है, वो बच्चे वैसे ही पढ़ रहे थे. लेकिन लेट्स से ग्रुप 2 के बच्चे जो ये वाली लर्निंग स्ट्रैटेजी थी वो इसको अप्लाई करके पढ़ रहे हैं. तो ऑल स्टूडेंट्स विल कंप्लीट अ टेस्ट ओवर द मटेरियल. बच्चों ने पढ़ा, 30 मिनट तक वो पढ़ा. जो ये फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने जैसे वो नॉर्मल पढ़ते थे वैसे पढ़ा, और जो सेकेंड ग्रुप था उन्होंने जो न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई थी वो उन्होंने उस हिसाब से पढ़ा. लेकिन यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द टॉपिक. बच्चों को ऑलरेडी भी तो कुछ नॉलेज थी ना, क्या पता उनको नॉलेज अच्छी थी तो वो उस वजह से वो टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लर्निंग स्ट्रैटेजी. यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या है, दे आर द अनडिजायरेबल वेरिएबल्स जो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं. फिर आता है मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है कि एज द नेम सजेस्ट इट मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये मॉडरेट करता है यानी इट डिटर्मिन्स हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट चेंजेस अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स. Sometimes moderating variables are also referred to as secondary independent variables that produce a combined effect on the dependent variable. तो independent variable we have a moderator and dependent variable. So moderator क्या है कि उसका presence या absence इस relationship को कितने level तक change करता है, strongly change कर रहा है या weak change कर रहा है. It is moderating variable. उसके बाद आता है कंफाउंडिंग और लर्किंग वेरिएबल. सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट माइट कंपीट विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू एक्सप्लेन द आउटकम. तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिल जाते हैं आउटकम को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि हम भी हैं लड़ाई में, तो हम जो है आउटकम को एक्सप्लेन करेंगे. सो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर द राइवल एक्सप्लेनेशंस दैट एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So they are called confounding because they confound the understanding of the relationship between cause and effect. और ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के साथ लिंक होते हैं. देखिए जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है. ठीक है, स्पूरियस रिलेशनशिप है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. स्पूरियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल रिलेशनशिप. वी हैव अ डाउटफुल रिलेशनशिप. क्यों, क्योंकि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल an increase in shoe size leads to increase in intelligence. अगर आपका शू साइज ज्यादा है तो आपकी इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगी, ऐसा एक स्टडी ने बोला. द ऑब्वियस कंफाउंडिंग वेरिएबल इज एज. एज क्यों, क्योंकि एज जो है वो शू साइज के साथ भी रिलेटेड है. ठीक है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका शू साइज इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका इंटेलिजेंस भी बढ़ता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि शू साइज के बढ़ने से इंटेलिजेंस बढ़ रही है. दिस इज अ स्पूरियस रिलेशन. शू साइज और इंटेलिजेंस का स्पूरियस रिलेशन है. सो व्हेन यू कंसीडर एज एज वन ऑफ द वेरिएबल्स द स्पूरियस इफेक्ट विल डिसअपियर. क्योंकि हमने सिर्फ शू साइज और इंटेलिजेंस को लिया इसलिए वो स्पूरियस है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एज को मीडिएटिंग वेरिएबल ले लूँ, मॉडरेटर ले लूँ, कुछ और वेरिएबल ले लूँ, तो ये जो स्पूरियस रिलेशनशिप है ये खत्म हो जाएगा. क्योंकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो शू साइज अगर बड़ा है और तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है. बेसिकली हमने एज को मिस कर दिया था. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इंटरवीनिंग, एक्सट्रेनियस, कंट्रोल वेरिएबल, कॉम्पोजिट, कंफाउंडिंग, मॉडरेटिंग, क्वालिटेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. नॉमिनल वेरिएबल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे नॉमिनल स्केल होता है, कैटेगरी की बात की जाती है. ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर की बात की जाती है, जैसे एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और बैड. कॉन्टिन्यूअस जैसे हाइट या वेट, एंड डिस्क्रीट जैसे सिबलिंग्स ऑफ अ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. अगर आपसे कोई पूछता है देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, आप बोलते हैं मैम 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है मैम 100 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. आप कभी बोलेंगे मैम 10.5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऐसा कभी नहीं होता है. सो दिस इज डिस्क्रीट. और कॉन्टिन्यूअस जैसे हाइट, वेट, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकती है. जैसे किसी का वेट लेट से 40 है
तो किसी का 40.2 भी होगा, किसी का 40.4 भी होगा। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव बात सेम है, मैंने अलग अलग टेबल्स में या फिर अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जैसे एज हो गया, वेट हो गया। कॉन्टिन्यूस हमारा हाइट, टाइम। डिस्क्रीट जैसे क्वांटिटी या फिर अकाउंट नंबर। देन सम अदर वेरिएबल्स, जैसे डमी वेरिएबल होता है, जो एक ही वेरिएबल दो वैल्यूज को ले लेता है, दैट इज डमी वेरिएबल। वी हैव लेटेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो मैंने आपको बताया था अनडिजायरेबल होता है, एंड देन वी हैव मीडिएटर्स एंड मॉडरेटर्स। फिर आता है हमारे पास पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? ये सब। और सैंपल क्या है? हमने इनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को चूज किया है ताकि हम अपने टेस्ट को इन पर अप्लाई कर सके, और जो रिजल्ट आएगा हम उनको अपने पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकें। अब देखिए, हु इज द टारगेट ग्रुप। हमारा जो टारगेट ग्रुप है स्टडी का, वो कौन है? वो हमारी पॉपुलेशन है। हु इन द टारगेट ग्रुप, हमें किसको ग्रुप में, किसको हमने एज अ सैंपल चूज करना है, वो हमारे सैंपल होते हैं। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, दैट इज द सैंपल साइज। एंड हाउ शुड द पीपल बी सर्वेड, हमने कैसे उन पे सर्वे करना है, दैट इज द सैंपलिंग मेथड। सो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या आता है? सबसे पहले डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, देन डिफाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम, selecting the technique, determining the sample size and executing the sampling process। दो तरह की सैम्पलिंग होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी होती है सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज और मल्टी फेज। नॉन प्रोबेबिलिटी हमारी होती है कन्वीनियंट, जजमेंट और कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पे आप स्नोबॉल सैम्पलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, स्नोबॉल सैम्पलिंग। So all these are non-probability sampling। Probability sampling क्या होता है कि when you have equal chance of being chosen, it is known as probability sampling। Simple random, so simple random में क्या है? जैसे हमारा लॉटरी मेथड होता है, like we have lottery method, it is simple random। Systematic, let's say मैंने बोला मेरे पास टोटल 1000 लोग हैं, तो मैं हर एक 15th इंडिविजुअल को, एवरी 15th इंडिविजुअल वो मेरे स्टडी का पार्ट बनेगा, एवरी 15th इंडिविजुअल, ठीक है। सो दिस इज सिस्टमैटिक, कि हमने एक सिस्टम लगा दिया, एक ऑर्डर लगाया। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जहां पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज और जेंडर। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है? हम पार्टीशन करते हैं पॉपुलेशन का इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स बाय सिलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ दीज क्लस्टर्स। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि इट इनकॉर्पोरेट्स अ ब्लेंड ऑफ डाइवर्स सैम्पलिंग टेक्निक्स टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्चर माइट यूज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टू सिलेक्ट क्लस्टर्स, ठीक है। क्लस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए उसने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगाया, और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाया उन क्लस्टर्स में से लोगों को चूज करने के लिए। तो मल्टी स्टेज, एक से ज्यादा उसने सैम्पलिंग का यूज किया है। नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पे देयर इज नो इक्वल चांस, नो इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सबसे पहले कि जहां पे हमें लगता है कि हाँ जो पार्टिसिपेंट्स है वो इजीली मिल जाएंगे। जैसे मेरे को अगर शॉपिंग पे रिसर्च करना है, या शॉपिंग पे मुझे कुछ अपना डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सीधा मॉल्स में चली जाऊंगी, मॉल्स के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी कि हाँ जो भी वहां पे शॉपिंग में को जिसके हाथ में शॉपिंग बैग देगा मैं उसको अपना क्वेश्चन पकड़ा दूंगी कि हाँ भाई ये भर दो, ठीक है। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि एम्स टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम यूजीसी नेट में बात करते हैं कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए। तो ये क्या है? इट इज अ कोटा और इट इज अ क्राइटेरिया। उसके बाद आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट और एक्सपर्टीज, ठीक है। मैंने बोला कि मैं खाली गर्ल्स को चूज करूंगी, मैंने बॉयज को चूज ही नहीं करना,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा ये जजमेंट है कि जो शॉपिंग है ना वो गर्ल्स ही ज्यादा करती हैं, बट जरूरी नहीं है ना, कुछ बॉयज को भी तो शॉपिंग पसंद होती है। उसके बाद आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल सैम्पलिंग हम उनके लिए करते हैं जो हार्ड टू रीच ग्रुप्स होते हैं। हार्ड टू रीच ग्रुप्स मतलब, जैसे मैं ड्रग एडिक्ट लोगों पे काम करना चाहती हूँ कि उनकी कुछ हैबिट्स के ऊपर मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो अब ऐसा तो नहीं है ना, मैं अगर किसी के पास भी जाके पूछूंगी आप ड्रग्स लेते हो, आप ड्रग्स लेते हो, मुझे तो थप्पड़ मारेंगे, वो बोलेंगे दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, अगर मुझे कोई एक बंदा भी मिलता है जो ड्रग एडिक्ट है, तो मैं उसको पूछूंगी कि हाँ आपके रेफरल में कोई है, आपके कोई फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे एक और बंदे का नाम बताता है, फिर मैं उसके पास जाऊंगी, ठीक है, वो मुझे आगे दो और बंदों के नाम बताएगा, ठीक है, फिर ये आगे मुझे बताएंगे, ये आगे मुझे बताएंगे। तो क्या बन रहा है, एक स्नोबॉल बन रहा है, एक चेन बन रही है। इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग। ये हमारे स्नोबॉल सैम्पलिंग के अलग अलग नाम हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या आता है हमारा, सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी हैव मीन, वी हैव मोड एंड वी हैव मीडियन। जैसे अब हमारा ये डेटा सेट है 734176, तो मीन क्या आएगा, जहां पर हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये क्या आ जाएगा हमारा, मीन आ जाएगा। मोड क्या आता है, फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज मोड। जैसे यहाँ पे मोड कितना आएगा, 7 आएगा, क्यों? क्योंकि वो दो बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने 7 + 3 4 1 7 6 को ऐड किया और फिर हमने 6 से डिवाइड किया, 28/6 हमारा मीन आ गया। अगर हम मीडियन की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं ऑर्डर में, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इधर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर हम उसकी मिडिल वैल्यू निकालते हैं। जैसे इनको हमने अरेंज किया और फिर मिडिल वैल्यू निकाली, विच इज 10/2, दैट इज 5। दिस इज द मीडियन। उसके बाद आता है हमारे डिस्पर्जन के मेजर्स, वी हैव रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज क्या होता है हमारा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 7 और लोएस्ट क्या है 1, तो 7 - 1 6 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ x - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n - 1। तो समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, x क्या है, हमारे डेटा पॉइंट्स, x बार क्या है, द मीन ऑफ द डेटा सेट, जो हमने मीन निकाला। n क्या है, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड -1। स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट विल बिकम आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज। मीडियन क्या हो गया, द वैल्यू दैट हैज द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हायर एंड लोअर, यानी हम मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं, बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू। एंड मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू। ठीक है, जिस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम अकर हो रही है। उसके बाद आता है हमारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। देखिए स्क्यूनेस बेसिकली हमारी शेप से रिलेटेड होती है। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। जब हमारा कर्व या तो ऐसे बन जाए या फिर ऐसे बन जाए, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एनडीसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन हमारा नॉर्मल ना बन के ऐसा बन रहा है, या राइट टेल जा रहा है या लेफ्ट टेल जा रहा है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूड। दीज आर द स्क्यूड कर्व्स, दीज आर द स्क्यूड कर्व्स। सो पॉजिटिवली स्क्यूड क्या हो गया, जहां पर जो टेल है वो राइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या आ गया, मीडियन, ये आता है मीन और ये आता है मोड। तो जो हमारा मीन होता है, इट इज ग्रेटर देन मीडियन एंड इट इज ग्रेटर देन मोड। अगर हम लेफ्ट टेल की बात करते हैं, लेफ्ट टेल मतलब हमारा क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड। यहाँ पे जो देखो लेफ्ट टेल है ना, अगर तो ये हमारा कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होती है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसलिए वो सेंटर में आएगा। मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार होगा तो ऑब्वियसली उसका जो पीक होगा वो हाई होगा, तो यहाँ पे मोड आ जाएगा। दिस विल बी आवर मोड, दिस विल बी आवर मीडियन एंड दिस विल बी द मीन। तो अगर हम प्लॉट करते हैं,
ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा मीन क्या है, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। क्यों? क्योंकि हमारी मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 5 और 6। ठीक, और यही अगर हम पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करेंगे तो जो हमारा मीन है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मीडियन एज कम्पेयर टू मोड। और अगर सिमेट्रिकल एनडीसी की बात करते हैं तो हमारा मीन मोड मीडियन बराबर होता है। ये देखो, ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये सिमेट्रिक है और ये राइट स्क्यूड है। तो शेप ऑफ अ कर्व कि हाउ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो या तो वो सिमेट्रिक होगा या फिर वो स्क्यूड होगा। कुर्टोसिस की बात करते हैं। सो कुर्टोसिस टॉक्स अबाउट द पीक्डनेस। कुर्टोसिस हमारा पीक्डनेस की बात करते हैं। तो दिस इज लेप्टोकर्टिक, जो हाईली, मतलब ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, मीजोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर कोई कर्व ऐसे जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा, लेप्टोकर्टिक। ये जो नॉर्मल है ये क्या आ जाएगा हमारा, मेसोकर्टिक। और कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ है, सो इट विल बी प्लैटिकर्टिक, इट विल बी प्लैटिकर्टिक। तो जो लेप्टोकर्टिक होता है उसमें हमारे जो बीटा वैल्यू होती है इट इज ग्रेटर देन 3। मेसोकर्टिक में बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 3 और प्लैटिकर्टिक में बीटा वैल्यू इज लेस देन 3। देन वी हैव पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एनडीसी कर्व है हमारा, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे कि टी टेस्ट हो गया या फिर अनोवा टेस्ट हो गया। लेकिन अगर हमारा एनडीसी कर्व नहीं है, हमारा जो कर्व है वो क्या है, स्क्यूड है, तब हम क्या यूज करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जैसे मैन विटनी यू टेस्ट या फिर स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट। अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। सो पैरामीट्रिक क्या है कि ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइक अ नॉर्मल कर्व, एनडीसी को फॉलो करता है, ठीक है। इट वर्क्स विद इंटरवल एंड रेशियो, ये इंटरवल और रेशियो पे काम करता है। जनरली मोर एफिशिएंट विद स्मॉल सैंपल साइजेस एंड इट कॉमनली यूजेस टी टेस्ट और अनोवा फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नॉन पैरामीट्रिक में क्या है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो थोड़ा सा स्क्यूड होता है। इट इज इट इज सुटेबल फॉर ऑर्डिनल एंड नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा। जो एफिशिएंसी है इसकी लार्ज सैंपल के साथ वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमारे मैन विटनी यू टेस्ट या फिर क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। अब जो पैरामीट्रिक मेथड्स हैं, दे ऑफर फास्ट कंप्यूटेशंस, दे प्रोवाइड क्लियर इनसाइट्स, दे एज्यूम डेटा टू बी नॉर्मल एंड दे यूज स्मॉल सैंपल साइज। तो efficient, prediction, simplicity and robustness, these are the advantages of parametric methods. नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हमारे सर्वे के लिए यूज हो सकते हैं, या फिर हमें एनवायरमेंटल स्टडी करनी है कि हमें स्टडी करना है हमारे एनवायरमेंट में किसी एक चीज का, वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द स्पीशीज। तो तब हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का अप्लाई करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इकोनोमेट्रिक्स के लिए, साइकोलॉजी रिसर्च या फिर मार्केटिंग एनालिसिस के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स का यूज करते हैं। तो हमारे जो हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं या वो पैरामीट्रिक हो सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक। अगर तो वन सैंपल पैरामीट्रिक है, वी हैव टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। टी टेस्ट में क्या होता है, जो सैंपल साइज होता है इट इज लेस देन और इक्वल टू 30। जेड टेस्ट में जो सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 30। अगर टू सैंपल्स हैं तो इट कैन बी द टू ग्रुप टी टेस्ट और जी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक में हमारे वन सैंपल में आते हैं काई स्क्वायर, ठीक है, स्मिरोव, रंस, बाइनोमियल। टू सैंपल्स में काई स्क्वायर, मैन विटनी, मीडियन एंड स्मिनेरोव। पेयर्ड में आगे हमारे साइन, विल्कॉक्सन, मैकनेमेनार और काई स्क्वायर। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं उसमें हम नॉमिनल और ऑर्डिनल यूज करते हैं, पैरामीट्रिक में हम इंटरवल और रेशियो स्केल्स यूज करते हैं। नॉमिनल टू डिफाइन एन एट्रीब्यूट, ऑर्डिनल हो गया हमारा ऑर्डर, इंटरवल क्या हो गया कि फिक्स्ड ऑब्जर्वेशंस, फिक्स्ड इंटरवल होते हैं बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस, और रेशियो क्या है, ट्रू एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। अब अगर हम पेयर्ड टी टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट नॉन पैरामीट्रिक कौन सा आएगा, विल्कॉक्सन। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अनपेयर्ड टी टेस्ट का इक्विवेलेंट कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक मैन विटनी यू टेस्ट। पियर्सन कोरिलेशन का है स्पीयरमैन कोरिलेशन। एंड वन वे अनोवा का है हमारा क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। उसके बाद आते हैं हमारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। रेफरेंसिंग स्टाइल्स हमारे होते हैं एपीए, एमएलए। ठीक है, देखिए एपीए, एपीए हमारा साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, नर्सिंग, लिंग्विस्टिक। एमएलए हमारा इंग्लिश, लिटरेचर, फॉरेन लैंग्वेज, शिकागो, आर्ट, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी। आई ट्रिपल ई हमारा इंजीनियरिंग, टेक्निकल में यूज होता है। सीएससी हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी में यूज होता है। अब देखिए एपीए वर्सेस एमएलए इन टेक्स्ट साइटेशन। एपीए में हम ऐसे देते हैं, एपीए इज अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एमएलए इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेफरेंसिंग स्टाइल से देखने को मिल जाएंगे। टाइटल ऑफ रेफरेंस लिस्ट जो होती है हम उसको रेफरेंसेस बोलते हैं, लेकिन एमएलए में हम उसको बोलते हैं वर्क्स साइटेड। ऑथर नेम, जैसे अगर किसी का नाम स्मिथ एना है तो हम स्मिथ लिख के और सिर्फ फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरा लिखते हैं स्मिथ एना। सो कैपिटलाइजेशन, साइटिंग सोर्सेज, अ क्विक गाइड फॉर स्टूडेंट्स। इट इज अ क्विक साइटिंग, मतलब साइटिंग द सोर्सेज सेम रहता है दोनों के लिए। टाइटल पेज, इट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो टाइटल पेज रिक्वायरमेंट। अब देखो, नाम एक ही है, ठीक है, एक ही पेपर को इन्होंने साइट किया है, बट फॉर्मेट देखो, एमएलए में वोल्फ एडवर्ड एन, ठीक है, एडवर्ड पूरा है, लेकिन यहाँ पे ई और एन के सिर्फ इनिशियल्स आए हैं। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, लेट्स से ये हमारे जर्नल का नाम है, टॉप हैवीएस्ट जो भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईयर आ गया है, और उसके बाद जर्नल का नाम आया है, फिर पेज नंबर आया है, फिर पब्लिकेशन का जगह आई है, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, और फिर फंड प्रेस जो या जिस पब्लिकेशन हाउस ने उसको पब्लिश किया है, लेकिन यहाँ पे ईयर कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो हर एक रेफरेंस स्टाइल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। फिर आता है हमारे पास लेवल ऑफ प्लेजरिज्म। ये गलत स्लाइड आ गई है, ये हमने आगे पढ़ना है, ठीक है, अभी इसको यहाँ से आप हटा देना, ये हमने अभी आगे पढ़ना है, लेवल ऑफ प्लेजरिज्म। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास रिसर्च बायस। रिसर्च बायस क्या होता है कि एनी टेंडेंसी विच प्रिवेंट्स अनप्रेजुडाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ अ क्वेश्चन, यानी जब हम बायस्ड हो जाते हैं ना, यानी हम एरर कमिट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या आ रहा है, हमारे पास मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, मिसलीडिंग रिजल्ट्स आर कमिंग, तब हम क्या बोलते हैं, जो हमारी रिसर्च है वो बायस हो चुकी है। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन बायस। इंफॉर्मेशन बायस इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट बायस। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन देयर आर एरर्स इन गैदरिंग और इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जब हम बायसनेस अकर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बायस। अब वो तो या तो मेजरमेंट बायस हो सकती है, ठीक है, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जब उसमें हम कुछ गलती कर रहे हैं, वो क्या होगी, हमारी मेजरमेंट बायस। रिकॉल बायस कि व्हेन पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी इनएक्यूरेटली रिमेंबर और रिकॉल अ पास्ट इवेंट, ठीक है, उन हमने अगर किसी का हमने ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी ने फेस किया, अगर अगर हम उसको बोलते हैं कि हाँ आप रिकॉल करने की कोशिश करो, और वो कुछ गलत तरीके से रिकॉल कर रहा है, या फिर वो मिस इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या आएगा, हमारा रिकॉल बायस। रिपोर्टिंग बायस, रिपोर्टिंग बायस क्या है कि जब जो हमारी रिपोर्टिंग है वो इनकम्प्लीट है, हम आधी अधूरी रिपोर्टिंग ही अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टडी की, दैट विल बी अ रिपोर्टिंग बायस। पब्लिकेशन बायस कब आता है कि जहाँ पे जो जर्नल्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं या कोई अदर पब्लिकेशन हाउसेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट या पॉजिटिव रिजल्ट्स को ही पब्लिश कर रही हैं, और अगर किसी स्टडी का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो उसको पब्लिश नहीं कर रही हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे हाइपोथेसिस नेगेटिव भी आ रहे हैं या नॉन सिग्निफिकेंट भी आ रहे हैं, तो हम कुछ अपने डेटा को मैनिपुलेट करके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा पेपर है या फिर जो हमारी स्टडी है वो पब्लिश हो सके। दैट इज अ पब्लिकेशन बायस। उसके बाद आता है लैंग्वेज बायस, कि अगर हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी जर्नल ने बोला आपने हिंदी नहीं यूज करनी है, आपने इंग्लिश ही यूज करनी है, सो दैट इज अ लैंग्वेज बायस। अब बायसनेस कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में।
फिर आता है हमारा इंटरव्यूअर बायस। इंटरव्यूअर बायस क्या होता है कि द पोटेंशियल फॉर बायस टू इन्फ्लुएंस द आउटकम, यानी कि मेरे कुछ पर्सनल बिलीफ हैं, ठीक है, मैं कुछ पर्सनल चीजें मानती हूँ, मेरे कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं, या फिर मेरा कुछ एटीट्यूड है स्पेसिफिक चीज को लेके, तो मैं उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहला आता है हमारा स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि व्हेन यू आर होल्डिंग अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट समथिंग और अबाउट अ सर्टेन ग्रुप्स, तब क्या होता है स्टीरियोटाइप, क्योंकि मैंने पहले ही उस पर्टिकुलर जो बंदा है या जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, हमने उसको पहले ही क्या कर दिया, जज कर दिया है। देन वी हैव कंफर्मेशन बायस, दैट इंटरव्यूज में सबकॉन्शियसली सीक इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ। मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो आंसर मिलेगा ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा हाँ जो मैं सोचती हूँ ना उस बंदे के बारे में वो वैसा ही है, या फिर वो रिस्पोंडेंट है या फिर वो जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो वैसे ही है। तो दैट इज कंफर्मेशन बायस। उसके बाद आता है सिमिलैरिटी बायस, अनकॉन्शियसली फेवरिंग द कैंडिडेट्स विद सिमिलर बैकग्राउंड्स। सेम बैकग्राउंड से है, जैसे मैंने एमबीए किया है, मैं पीएचडी कर रही हूँ मैनेजमेंट में, मुझे कोई रेस्पोंडेंट मिला उसने भी एमबीए किया और वो पीएचडी कर रहा है मैनेजमेंट में, तो मैं उसको फेवर करना शुरू कर दूंगी। दैट इज सिमिलैरिटी बायस। देन वी हैव हैलो एंड हॉर्न इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन एन इंटरव्यू फॉर्म्स अ ओवरऑल पॉजिटिव इंप्रेशन, ठीक है, हैलो पॉजिटिव होता है और जो हॉर्न होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हॉर्न क्या होता है, ऐसे वो सींग बने होते हैं ना, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हॉर्न्स आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, जैसे डेविल के सींग होते हैं। तो हैलो इज पॉजिटिव एंड हॉर्न्स इज नेगेटिव। तो हॉर्न्स इफेक्ट क्या होता है, हमारा नेगेटिव इंप्रेशन होता है। Contrast effect, it leads to evaluating the candidates relative to each other rather than based on objective criteria. तो हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर आता है रिस्पॉन्स बायस। इट अराइजेस इन हाउ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड। अब इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एज अ पार्टिसिपेंट आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बायसनेस है। सबसे पहला आता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या है कि मैं ऐसे आंसर्स दूं विच आर सोशली मोर एक्सेप्टेबल, तो मैं उस तरीके से आंसर दूंगी मैनिपुलेट करके कि मुझे लगे कि हाँ सोसाइटी में मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, या अगर मैं ऐसे आंसर दूंगी तो जो सोसाइटी है वो मेरे प्रति और एक्सेप्टेबल होगी। दैट विल बी अ सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। देन वी हैव एक्विसेंस बायस, या सेइंग और नहीं सेइंग, ठीक है, यानी द टेंडेंसी टू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट और क्वेश्चंस विदाउट केयरफुली कंसीडरिंग देयर कंटेंट। या तो आप हर चीज के लिए अग्री अग्री अग्री, या हर चीज के लिए डिसएग्री डिसएग्री डिसएग्री। आप मतलब सुन भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, बस या तो हाँ 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 या तो ना ना ना। दैट इज एक्विसेंस सेइंग। Then non-response bias, it emerges when the individuals who choose not to participate or have different characteristics compared to those who participate. मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका नॉन रिस्पॉन्स बायस आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बिन मतलब ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, उनका मन नहीं है, बट हाँ ठीक है किसी ने बोल दिया कि कर दे तो ठीक है वो कर रहे हैं, वो दिल से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉन रिस्पॉन्स बायस। उसके बाद कुछ इफेक्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है, ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन प्रोसेस वी हैव कंडीशनिंग इफेक्ट, दैट पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स चेंजेस ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर। उनको पहले कुछ एक्सपोज हुआ था उस चीज को लेके, तो उसकी वजह से उनके जो चेंजेस आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज में, दैट इज कंडीशनिंग इफेक्ट। देन वी हैव एलिवेशन इफेक्ट, दैट पार्टिसिपेंट्स गिव कंसिस्टेंटली हायर रेटिंग्स या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देन एक्चुअल। फिर हैलो इफेक्ट मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव होता है। हॉथरन इफेक्ट, दैट दे मॉडिफाई बिहेवियर क्योंकि उनको पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन वी हैव मैचुरेशन इफेक्ट, कि चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट्स दैट अकर नेचुरली ओवर टाइम लाइक एजिंग लर्निंग फटीग, ये टाइम के साथ बढ़ता है या कम होता है। देन वी हैव प्लेसिबो इफेक्ट, दैट पार्टिसिपेंट शो चेंजेस ड्यू टू द बिलीफ एंड नॉट द एक्चुअल ट्रीटमेंट, वो मीठी गोली, ठीक है, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। फिर आता है रिएक्टिव इफेक्ट, दैट मेजरमेंट इटसेल्फ इन्फ्लुएंसेस द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर। पार्टिसिपेंट का बिहेवियर जो है वो मेजरमेंट की वजह से ही चेंज हो रहा है। एंड रिग्रेशन की एक्सट्रीम स्कोर्स हम देते हैं, दैट टेंड्स टू मूव क्लोजर टू द एवरेज ऑन रिपीटेड मेजरमेंट। ये हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हमें डेटा कलेक्शन के टाइम पे एनकाउंटर करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है या फिर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो प्रिडिक्ट करती है हमारे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को। अब हमारे जो हाइपोथेसिस हैं वो सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एम्पेरिकल हो सकते हैं, नल, ऑल्टरनेटिव, लॉजिकल या स्टेटिस्टिकल।
सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, यहाँ पे आ गया स्मोकिंग, इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप स्मोकिंग कम ज्यादा करेंगे तो कैंसर पे भी वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, जो ज्यादा स्मोकिंग करेगा उसके कैंसर के चांसेस हाई होते हैं, तो स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है कि जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे आर मोर देन टू, यानी जैसे स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स दे कैन लीड टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन, तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बढ़ गए और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बढ़ गए। फिर आता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एम्पेरिकल इज एक्सपेरिमेंट, या फिर हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडीज बीइंग डन, जैसे roses watered with liquid vitamin B, they grow faster than the roses which are watered with liquid vitamin E। यानी यहाँ पे भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमारे पास दो तरीके के लिक्विड्स हैं, एक विटामिन बी है और एक विटामिन ई है, तो अभी हम ट्रायल बेसिस पे हमने बोल दिया कि जो विटामिन बी से हम वाटर कर रहे हैं या जिस वाटर में विटामिन बी है, जो वो वाले रोजेस हैं वो ज्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं या वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर वाटर्ड विद विटामिन ई। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल एंड एरर, इट इज लीडिंग टू अ सीरीज ऑफ फाइंडिंग्स। उसके बाद आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय H0। और जब हम रिसर्च करते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, ताकि जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। इट इज डिनोटेड बाय HA और H1। So it is the hypothesis that sample observations are influenced by some non-random cause. Statistical hypothesis, which can be verified statistically. The statement would be logical or illogical, but if static verifies it, it will be statistical hypothesis. उसके बाद आता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो डायरेक्शन है वो बताता है, जैसे हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन लीड्स टू हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल्स, यानी दोनों पॉजिटिव साइड में जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग। अब इसने सिर्फ ये बताया कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। अब क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, वो कौन सा इफेक्ट डाल रहा है वो हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, बस इतना बोला है कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। सो दिस इज नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं बताइए, बस एक जनरलाइज्ड वे में हमें बता दिया है। सो ये क्या है हमारा नॉन डायरेक्शनल। Causal hypothesis, it predicts a cause and effect between the dependent and independent variables। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये hypothesis है ये predict करती है effect of the independent variable on dependent variable, causal, cause and effect। Associative hypothesis क्या है कि when there is a change in one variable there is a change in other variable। ठीक है, तो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है, तो ये एसोसिएटेड है, ये रिलेटेड है। या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये भी रिलेटेड है। दीज आर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। फिर आता है हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं, एंड इट अकर्स व्हेन वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, सो रिजेक्टिंग a true null hypothesis is type 1 and accepting a false null hypothesis is type 2। accepting की जगह एक और वर्ड हो सकता है fail to reject। ठीक है, आपको दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। fail to reject null hypothesis is type 2 which is false negative। अब देखिए टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 2 क्या हो गया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एक गलत नल हाइपोथेसिस को। वी में रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। ठीक है, इसी को हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, इट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। अ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड false positive denoted by alpha
and a type 2 error is called false negative denoted by beta. उसके बाद आता है ethics. Ethics क्या होते हैं? A set of values या set of rules that govern our expectations कि हमें कैसे behave करना है और दूसरों को भी कैसे behave करना है. ये कौन बताता है हमें? Ethics बताता है. So research ethics क्या होते हैं? These are the set of ethical guidelines that guides how scientific research should be conducted. Research ethics govern the standards of conduct for scientific researchers. It is the guideline for responsibility conducting the research. Objectives क्या होते हैं? To guard or protect the human participants, their dignity and their right. Second objective क्या है? To make sure कि जो research है वो उस direction में हो कि मतलब जो हमारे participants हैं ना उनको harm ना पहुंचे. Third objective क्या है? To inspect a particular research event and schemes for their ethical reliability. ठीक है, reliability होनी चाहिए लेकिन ethical reliability होनी चाहिए. अभी हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, नॉन मेलिफिसेंस, जस्टिस, डिग्निटी, बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑनेस्टी क्या होता है? कि बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द फाइंडिंग्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च. आप जब क्वेश्चनियर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर आप जब इंटरव्यू भी लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं ना कि क्या आपकी रजामंदी है कि मैं आपकी जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड कर लूं. आप ऐसे ही चोरी छुपे नहीं कर सकते हो. यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट. दैट इज ऑनेस्टी. देन वी हैव इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या होता है? ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. यानी जो भी आपने एग्रीमेंट किया है या जो भी प्रॉमिस किया है तो आप उसको पूरा कर रहे हैं. आप झूठे वादे नहीं कर सकते अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ. देन यू हैव ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि आप बायसनेस को अवॉइड करते हैं. आप भेदभाव नहीं करते कि हाँ वी आर फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड या फिर हम जैसे एक ही गांव से हैं, ठीक है, तो चल तू मेरा भाई तो चल ठीक है, ऐसा हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं करना. देन वी हैव इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ठीक है, कि जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको आपके रिसर्च के बारे में हर एक चीज पता है. दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. देन रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन ऑफ द रिस्पोंडेंट. यानी उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जब उसका मन करे वो स्टडी को छोड़ सकता है या फिर वो आपका क्वेश्चन है या फिर वो आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता. उसको इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन विद इम्पेयर्ड और डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी. यानी दोज आर डिपेंडेंट. ठीक है, मतलब उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए या फिर उनको कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए. देन वी हैव बेनिफिसेंस. बेनिफिसेंस क्या है? टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट. हमें पार्टिसिपेंट्स को मिनिमम हार्म देना और मैक्सिमम बेनिफिट देना है. Then non-maleficence that do not harm, minimize harm or risk, and you have to ensure the privacy, autonomy, and dignity of your respondents. Then responsible publication, responsibly publishing to promote and uptake the knowledge. Protecting anonymity, कि अगर आपने बोला है कि जो आपका डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो आपको उस रिस्पोंडेंट का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना होगा. आप उसको ऐसे ही किसी को नहीं दिखा सकते हो. आप उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते. फिर आता है साइंटिफिक मिसकंडक्ट. साइंटिफिक मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ द कंडक्ट. अब इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं: फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजियरिज्म. फॉल्सिफिकेशन क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मैन्युपुलेटिंग द रिसर्च मटेरियल, इक्विपमेंट या प्रोसेस. आप उसको मैन्युपुलेट कर रहे हैं सच दैट रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड. जब आपने मैन्युपुलेट कर दिया तो ऑब्वियसली वो जो वो इंटेंडेड था दिखाने के लिए आउटकम वो नहीं दिखाएगा. सो फॉल्सिफिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है? मेकिंग द चेंजेस, फॉर एग्जांपल सेटअप और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ताकि आप जस्टिफाई कर सके कि ये देखिए ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है चाहे वो नेगेटिव आ रहा था. तो आपने क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया. या फिर कोई प्रोसेस था या फिर कोई मेथड था, आपने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया ताकि जो आउटकम्स है वो आपके हिसाब से आए. दैट इज फॉल्सिफिकेशन. फैब्रिकेशन क्या होता है? आप डेटा खुद से इन्वेंट कर देते हैं. तो क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ डेटा और रिजल्ट्स, दैट इज फैब्रिकेशन. आप अपने लिए मतलब अपने लिए इन द सेंस कि आपको जो आउटकम चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया था बट आपको जो सैचुरेशन पॉइंट था वो आपको नहीं आया. तो आपने खुद से डेटा बना दिया कि हाँ मैंने 15 लोगों का जो इंटरव्यू है वो लिया है. तो आपने जो 5 लोग थे ना उनका जो डेटा है वो आपने फैब्रिकेट किया, यानी 5 लोगों का डेटा आपने खुद ही क्रिएट कर दिया. दैट इज फैब्रिकेशन. देन वी हैव प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म का मतलब क्या हो गया? कि कॉपिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी without giving that person the actual credit or the source.
टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, ग्लोबल, सेल्फ, पैचवर्क, वर्बेटिम और पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। डायरेक्ट या फिर ग्लोबल का मतलब क्या हो गया कि एक एक शब्द, हर एक चीज डिट्टो कॉपी कर दी है, दैट इज डायरेक्ट और ग्लोबल प्लेजरिज्म। पैचवर्क का मतलब क्या हुआ, पैचवर्क या मोज़ेक, एक चीज यहाँ से उठाई, एक चीज यहाँ से उठाई, एक चीज यहाँ से उठाई, एक चीज यहाँ से उठाई और फिर हमने कंबाइन कर दी, ठीक है। मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना था, एक वेबसाइट से ये उठाया, एक वेबसाइट से ये उठाया, एक वेबसाइट से ये उठाया और फिर आपने तीनों चीजें एक ही उसमें डाल दी। 3 वेबसाइट यूज करके आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, दैट इज पैचवर्क और मोज़ैक प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने फर्स्ट रिसर्च पेपर लिखा था, अब उसकी फाइंडिंग्स आपने सेकंड रिसर्च पेपर में यूज की, गलत बात नहीं है, बट आपने खुद को साइट नहीं किया। आपने सोचा मेरा ही तो काम है, ये थोड़ी प्लेजरिज्म आएगा, नहीं, वो भी प्लेजरिज्म होता है। आपने खुद को भी साइट करना है, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। एंड देन वी हैव एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, कि कुछ चीजें अनइंटेंशनली हो जाती है, हम नहीं चाहते बट वो हो जाता है, ठीक है, जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है या फिर हम गलती से कोई चीज कॉपी कर लेते हैं, बट अगर वो हम साइटेशन नहीं दे रहे हैं उसकी भी, ठीक है, ऑल्दो वो एक्सीडेंटल था बट इट इज स्टिल अ प्लेजरिज्म। अब देखिए, जो हमने पीछे प्लेजरिज्म किए थे उसके कुछ अलग नाम हैं। ये मुझे कहीं पे मिला था तो मैंने सोचा कि शायद आपको ये यूजफुल होगा। जब आप दूसरे का काम वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं, इट इज नोन एज द घोस्ट राइटर। जब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अनदर्स राइटिंग, ठीक है, एंड सिंगल सोर्स विदाउट मॉडिफिकेशन, दैट इज फोटोकॉपी, आपने फोटोकॉपी कर दिया, दैट इज अ फोटोकॉपी राइटर। अटेम्प्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम सेवरल अदर सोर्सेज, फोटोकॉपी हो गया कि सिंगल सोर्स था, लेकिन जब मल्टीपल सोर्सेज हैं, इट इज पॉटलक पेपर राइटर। और जब आप जेनरसली अपने ही काम से आप सेल्फ प्लेजरिज्म कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ स्टीलर राइटर। सो वी हैव घोस्ट राइटर, फोटोकॉपी राइटर, पॉटलक पेपर एंड सेल्फ स्टीलर राइटर। लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 0, 1, 2 एंड 3। 0% होता है अप टू 10%, लेवल 1 होता है 10 टू 40, लेवल 2 होता है हमारा 40 टू 60 एंड ग्रेटर देन 60 हमारा कहाँ जाता है, लेवल 3 में जाता है। अब देखिए, अगर तो लेवल 0 है कोई पेनल्टी नहीं है, अगर लेवल 1 है यानी 10 टू 40 तो आपको 6 महीने तक अपना जो स्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो नहीं सबमिट कर सकते हैं। अगर 40 टू 60% है, लेवल 2 में है, तो 1 ईयर तक होता है। और जो हमारा सुपरवाइजर होता है ना, उसका एक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर मोर देन 60% है तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है पीएचडी से, वो कैंसिल हो जाता है और जो सुपरवाइजर होता है उसको 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स इन सक्सेशन नहीं मिलते हैं, प्लस उसको कोई भी नया स्टूडेंट नहीं मिलता है 3 साल के लिए कि उसके अंडर वो पीएचडी कर सके। सो दीज आर द पेनल्टीज ऑफ प्लेजरिज्म। देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च। हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं आईसीटी की, वो हम 3 फेजेस में यूज कर सकते हैं, फॉर प्री डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा एनालिसिस एंड फॉर पोस्ट डेटा एनालिसिस। अब देखो, प्री डेटा एनालिसिस में या तो हम लिटरेचर सर्च करेंगे या फिर लिटरेचर को ट्रैक करेंगे या फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर लिटरेचर सर्च की बात करते हैं तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए गूगल स्कॉलर यूज कर सकते हैं, रिसर्च गेट, अकेडमिया, सीमेंटिक स्कॉलर, साइनैप्स, एरिक, पबमेड और डुआच। हम लिटरेचर सर्च के लिए जो डेटाबेसेस हैं, ऑल दीज आर द डेटाबेसेस जिनको हम यूज करते हैं फॉर सर्चिंग आर लिटरेचर। अगर ट्रैकिंग की बात करते हैं, वी हैव मेंडले, जोटेरो, एंडनोट और इजीवेब। डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास गूगल फॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स होते हैं, सर्वे मंकी, जोहो फॉर्म, टाइप फॉर्म और कॉग्निटिव फॉर्म्स। अब ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम एसपीएसएस की बात करते हैं, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसपीएसएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर social sciences, statistical package for social sciences. This is quantitative data analysis. We have RStudio, we have MATLAB, SAS, GraphPad and Microsoft Excel. ये हमारे quantitative के लिए होते हैं। अगर हम qualitative की बात करते हैं, we have NVivo, we have atlas.ti,
मैक्स QDA एंड ट्रांजेना। पोस्ट एनालिसिस, जब हमारा डेटा एनालिसिस हो गया, हमने कलेक्ट भी कर लिया, हमने डेटा एनालाइज भी कर लिया, अब जब हमने रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी लगाने हैं, तब हम एंड नोट, जोटेरो या मेंडले का यूज करेंगे। अगर हमें प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना है, वी हैव ग्रामरली, वी हैव टर्न इट इन, ठीक है, आर्टिकल चेकर, डुप्ली चेकर, वी हैव ये ड्रिल बिट एक्सट्रीम। सो बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वी हैव क्विलबॉट। तो ये सब सॉफ्टवेयर हमारे प्लेजरिज्म डिटेक्शन के काम आते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास। आई होप कि जो रिवीजन था रिसर्च एप्टीट्यूड का वो आपको समझ आया होगा। मैंने इन शॉर्ट क्रिस्प हर एक टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी, मैंने इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं रखा था क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो थ्योरी है ना, आप वो रिवाइज करना भूल जाते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द टॉपिक्स अलॉन्ग विद देयर थ्योरीज एज वेल। और अगर आपको पसंद आई है क्लास तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में भी और वीडियो को बनाने में भी। सो दीज आर द स्पेशल ऑफर्स जो JC Academy प्रोवाइड कर रहा है टिल 1st of January 2026 एंड यू कैन यूज द कूपन कोड MERRY35। 19th January से हमारा पेपर 2 का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज़ बाइलिंगुअल इन नेचर विद मल्टीपल वैलिडिटीज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस गिवन फ़ोन नंबर पे कॉल कर कर आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy। दिस इज आर टेलीग्राम ग्रुप ऑफ पेपर 1 UGC नेट। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।